بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رینڈم تھاٹس کے ناظرین کو رینڈم تھاٹس میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے کہ کیسے اللہ والے نے ایک پنڈت کی بیٹی کو چھپکلی بنا دیا۔ محترم ناظرین، کہا جاتا ہے کہ ایک گاؤں تھا جہاں لوگوں کو قدرت نے بے پناہ نعمتوں سے نوازا تھا۔ اللہ عز و جل نے وہاں کے لوگوں کو مالا مال کیا ہوا تھا۔ غرض یہ کہ ایسی نعمتیں جن کو دیکھ کر انسان اکثر مغرور ہو جایا کرتا ہے، اور سب سے بڑی اور بری بات یہ تھی کہ وہ سب کے سب کافر تھے، اپنی شان و شوکت اور دولت پر فخر کرتے تھے۔ چونکہ ہر شخص دولت مند تھا اور کسی کے پاس بھی روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی، وہاں نہریں تھیں، دریا تھے اور باغات تھے، اور جب اتنا کچھ کسی انسان کے پاس ہو تو وہ تو مغرور ہو ہی جایا کرتا ہے۔ اور یہاں کسی ایک انسان کے پاس نہیں بلکہ پوری کی پوری بستی بے تحاشا دولت مند تھی، سوائے چند مسلمان گھروں کے، اور وہاں کافر زیادہ تھے اور مسلمانوں کے گھر اکا دکا تھے۔ ان کا سردار ایک پنڈت تھا جس کی ایک اکلوتی بیٹی تھی اور جسے وہ بے تحاشا چاہتا تھا۔ وہ بیٹی بہت ہی زیادہ اناپ پرست تھی اور اپنے آپ کو بہت زیادہ اونچا سمجھتی تھی۔ وہاں پر جو غریب لوگ تھے وہ صرف مسلمان تھے، تمام کافر ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے، مگر مسلمانوں کو دیکھنے والا وہاں پر کوئی نہ تھا۔ وہ بیٹی عمل کر کے یعنی کالا جادو کر کے غریبوں کو جانور بنا دیا کرتی تھی۔ تمام مسلمان اس سے بہت زیادہ تنگ تھے۔ وہ لوگوں کو غلام بناتی، مزدور بناتی، اور اگر ان میں سے کوئی اس کی بات نہیں مانتا تو وہ کالا جادو کر کے ان سب کو جانور بنا کر اپنے اشاروں پر نچاتی تھی۔ اس بستی میں اکا دکا مسلمان تھے جن کا کوئی بھی پرسان حال نہیں تھا۔ جب پنڈت کی بیٹی کا علم حد سے بڑھ گیا تو مسلمانوں میں سے ایک بوڑھے شخص نے اللہ رب کریم کے حضور گڑ گڑا کر یہ دعا کی، اے رب کریم، ہماری نسلیں جو چند ایک یہاں پر بچی ہیں، ان نسلوں کو تو بچا لے۔ پنڈت کی بیٹی نے ہمارا جینا دوبھر کر دیا ہے، کوئی بھی ہمارا مسیحا نہیں ہے، نہ دولت ہے نہ جسمانی طاقت ہے۔ اے اللہ، ہمارے لیے کوئی ایسا مسیحا بھیج دے جو نہ صرف طاقتور ہو بلکہ اس جادوگرنی کو بھی ہرا دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بوڑھے کی دعا قبول فرمائی اور یوں اس جگہ ایک اللہ والے کو بھیج دیا۔ وہ اللہ والے اس طرح بستی میں داخل نہ ہوئے، بلکہ ایک دن کچھ عجیب و غریب واقعہ ہوا۔ وہ پنڈت سیر کرنے کے لیے جنگل کی طرف نکلا، بڑی شان سے وہ سفر کرتا ہوا جا رہا تھا۔ اچانک ایک زہریلا سانپ اس کے سامنے آ گیا۔ اگر وہ پنڈت چاہتا تو وہ سانپ کو اپنے عمل سے ختم کر سکتا تھا، لیکن وہ سانپ بہت ہی زیادہ طاقتور تھا۔ اس زہریلے سانپ نے اس کے قریب آ کر اس کو ڈس لیا۔ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اس کے جو غلام تھے جب انہوں نے اپنے سردار کی حالت دیکھی تو فوری طور پر اس کو گھر پہنچایا گیا۔ اس لڑکی نے اپنے باپ کی حالت دیکھی تو ملک کے بڑے بڑے طبیب اور حکیم لائے گئے۔ وہ اپنے ہنر میں بہت ہی ماہر تھے، مگر بہت ہی عجیب بات تھی کہ وہ بہت سی کوششوں کے باوجود زہر نکالنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ زہر تیزی کے ساتھ پنڈت کے جسم میں پھیل رہا تھا، کوئی بھی اس زہر کو نکالنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ وہ خود بھی اتنا بڑا عامل تھا مگر اس کے باوجود اپنا علاج نہیں کر پا رہا تھا۔ اسے تو کوئی ہوش ہی نہیں تھا۔ اتنی بڑی طاقت رکھنے کے باوجود، اتنا روپیہ پیسہ ہونے کے باوجود، کتنے بڑے بڑے اپنے ہنر میں ماہر حکیم ہونے کے باوجود زہر کو جسم سے نکال نہیں پا رہے تھے۔ اس وقت شہر میں ایک درویش کی آمد ہوئی۔ درویش کو اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے بھیجا تھا۔ درویش نے اس کے گھر کے باہر پہنچ کے دروازہ کھٹکھٹایا۔ بڑے بڑے درباری کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا، کیا بات ہے، کس سے ملنا چاہتے ہو؟ فقیر نے کہا، یہاں کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے۔ وہ کہنے لگے، تمہیں کیسے پتا؟
तुम तो हमें अजनबी लगते हो और हमने तो तुम्हें आज तक कभी नहीं देखा। दरवेश ने कहा, मैं मुसाफिर हूँ और मुझे खबर मिली है यहाँ के सरदार को एक सांप ने डस लिया है और कोई भी इनका इलाज नहीं कर पा रहा। दरबारियों ने कहा, अरे भाई, लेकिन तुम हो कौन? फकीर ने कहा, मैं हकीम हूँ और मैं इनका इलाज करने आया हूँ। इन दरबारियों ने फकीर की ये हालत देखी तो जोर जोर से हंसने लगे, क्योंकि आपने हटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और हुलिये से ही गरीब लग रहे थे। दरबारियों ने कहा, अरे भाई, तुम इतने बड़े सरदार का इलाज करोगे? मुल्क भर के मायानाज तबीब और हकीम बुलाए गए। हमारे सरदार के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। दरवेश ने कहा, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे सरदार की जान बच जाए तो फिर मुझे अंदर आने की इजाजत दो। गुलाम कहने लगे, ठीक है, हम अंदर से इजाजत लेकर आते हैं। वो अंदर आया और पंडित की बेटी से कहा, मालिकन, बाहर एक गरीब आया है, हुलिये से फकीर लगता है, लेकिन कहता है कि मैं पंडित का इलाज करूंगा। वो जहर जो तेजी से फैलता जा रहा है, इसको निकाल कर फेंक दूंगा। कहने लगे, ठीक है, इसको अंदर बुलाओ। जब फकीर इस घर में आया तो देखा कि पंडित जहर के असर से तड़प रहा है और अपनी टांग को बार बार बिस्तर पर पटक रहा है। वो दरवेश पंडित के पैर की जानब आया जहाँ सांप ने काटा था। इस जगह पर अल्लाह वाले ने थूक दिया और फौरी तौर पर वहाँ से भाग गया। पंडित के सारे साथी और इसकी बेटी हैरान हुए कि ये कौन दीवाना था कि कमरे में आया और इस जगह पर थूक कर भाग गया जिस जगह सांप ने काटा था, और तो और इसको कोई पकड़ भी ना सका। इसकी बेटी गुस्से में आ गई। इसने कहा, ये तो बेअदबी है, इसने गुस्ताखी की है यहाँ के सरदार के साथ। चलो कोई बात नहीं, थूक को साफ करो, मैं अभी इसे अपने अमल से जानवर बना देती हूँ। लेकिन जैसे ही इसकी थूक साफ करने के लिए रुमाल पकड़ा और पंडित की जहर से नीली हुई टांग से थूक साफ करने लगा तो वो हैरान होते हुए रुक गया और उंगली से थूक को सांप के डसे पर मलने लगा। तो इसकी बेटी कहने लगी, ये आप क्या कर रहे हैं? इस दीवाने ने मेरे बाप की टांग पर थूक दिया है और आप इस थूक को मल रहे हैं। इसने हाथ का इशारा करके पंडित की बेटी को रोक दिया और कहा, रुको एक मिनट। और जैसे ही इस थूक को पंडित की टांग पर मला गया, जहर का असर फौरी तौर पर खत्म हो गया। वो टांग जो कटने के काबिल थी वो पहली हालत पर आ गई। वो पूरी टांग जो पहले नीली हो चुकी थी वो अब वापस अपने असली रंग पर आ गई थी। आहिस्ता आहिस्ता पंडित भी होश में आने लगा। जैसे ही पंडित होश में आया तो उसे फकीर के किस्से का पता चला। उसने कहा, अरे भाई, वो तो हमारा मसीहा है, तुम लोगों ने इसे दीवाना कहा, इसको बेइज्जत किया, वो थूकर यहाँ से कैसे गायब हो जाएगा? अरे जाओ और जल्दी से इसे लेकर आओ, इसने तो हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है, हम इसके एहसान का बदला जरूर चुकाएंगे। पंडित के कहने पर उसके सारे दरबारी उसी वक्त उस फकीर को ढूंढने के लिए चारों तरफ फैल गए, कहीं भी इस फकीर को ना देखा। फिर जब जंगल में दाखिल हुए तो वहाँ एक दरख्त के नीचे एक आदमी को इबादत करते हुए देखा। वो गौर से इस दरवेश को देख रहे थे, ये क्या कर रहा है, ये किस तरह की इबादत कर रहा है? हम लोग तो अपने बुतों के आगे हाथ जोड़ते हैं और ये तो न जाने किसको सजदा कर रहा है। खैर, पंडित का हुक्म था तो फौरी तौर पर दरवेश को पकड़ा गया और पंडित के सामने पेश किया गया। पंडित ने कहा, आप कौन हैं और कहां से आए हैं? सबसे पहले तो गुस्ताखी की माफी चाहता हूँ कि मेरे लोगों ने आपके साथ बहुत बुरा सलूक किया, लेकिन आपकी वजह से मैं जिंदा हूँ। हम गुनाहगारों की आंखें आपको पहचान नहीं सकी। मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, आपसे दरखास्त करता हूँ कि आप मेरी तरफ से ये कीमती पोशाक यानी लिबास और अरबी घोड़ा कबूल कीजिए। फकीर ने मुस्कुराकर पंडित की तरफ देखा और बोला, ये घोड़ा और लिबास बहुत कीमती है, ये लिबास पहनकर मैं घोड़े के लिए घास काटूंगा तो क्या अच्छा लगूंगा? पंडित ने कहा कि आप फिक्र ना करें, घोड़े के साथ साथ खिदमत गुजार भी दिए जाएंगे, यानी नौकर चाकर भी आपको दिए जाएंगे। दरवेश बोला, अच्छा,
कहा, इतना माल और दौलत और मुलाजमों के साथ मैं अपनी रिहाइश गाह में क्या अकेला रहूंगा? पंडित बोला, हजूर आप परेशान ना हो, ये मेरी बेटी है, आपके सामने है। बेटी हैरत से अपने बाप को देख रही थी कि मेरा बाप क्या कहने वाला है। उसने कहा, मेरी बेटी जिसको आपने अभी देख लिया है, इसकी शादी आपसे कर दी जाएगी और एक शर्त है कि आपको जो कुछ भी दे रहा हूँ इसके लिए आपको अपना मजहब छोड़ना पड़ेगा। मेरे खास मुलाजमों ने आपको इबादत करते हुए देखा है और जहाँ तक हमारी मालूमात है हम तो बुतों के आगे सजदा करते हैं, हम अपने इन मूर्तियों की इबादत करते हैं और जिसको आप सजदा कर रहे थे वो तो आपका खुदा है ना। मेरा मतलब है कि आप मुसलमान हैं ना, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ ये सब कुछ ले लें, अपने मजहब को छोड़ दें। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? फकीर ने कहा कि मुझे एक बात बताइए कि आप मुझे सब कुछ दे रहे हैं और आपने मुझे अभी दुआ भी दी है कि मेरी बहुत सी औलादे हों कि आपकी नस्ल आपकी बेटी से चले। मुझे बताइए कि अगर इन बच्चों में से किसी बच्चे को खुदा न खास्ता कुछ हो जाता है तो फिर रोना किसको पड़ेगा? पंडित ने कहा, हुजूर अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर रोना तो आपको ही पड़ेगा। दरवेश मुस्कुरा कर बोले, अगर ये सारा माल लेकर मुझे रोना पड़ेगा तो पंडित जी आप अपना घोड़ा और कीमती लिबास और अपनी बेटी और ये आलीशान घर अपने पास ही रखें। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं एक मुसलमान हूँ। अगर ये तमाम नेमतें लेकर मुझे अपना मजहब छोड़ना पड़े तो मैं अपनी जान देकर भी अपने मजहब को नहीं छोड़ूंगा। जिस रब ने मुझे पैदा किया है तो क्या इसके दीन को छोड़कर मैं आपके पास चला आऊं सिर्फ इन चंद पैसों के लिए, दुनिया की चीजों के लिए? मुझे तो आखिरत की जिंदगी चाहिए और ये सब चीजें तो मुझे वहाँ भी मिल ही जाएंगी, इसलिए मैं अपनी दरवेशी में बहुत खुश हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे जिस मकसद के लिए यहाँ भेजा है बस वो मकसद पूरा हो जाए। पंडित ने कहा, क्या मकसद है आपका? फकीर ने कहा, यहाँ के मुसलमानों पर बहुत ही जुल्म हो रहा है, बस इन्हीं के लिए मसीहा बनकर आया हूँ। ये कहकर वो जाने लगे तो पंडित ने दरवेश को रुक जाने को कहा। कहने लगा, मैंने माल देकर आजमाया, तुमको हर तरह से जांच लिया, तुम अपने मजहब को छोड़ने पर राजी ना हुए। अगर तुम यही करने आए हो तो क्या तुम्हें किसी बात का डर नहीं है? क्या तुम नहीं जानते हो कि हम कितने ताकतवर हैं? हमारी बेटी अपने अमल में इतनी माहिर है कि तुम्हें यहाँ खड़े खड़े जंगली जानवर बना सकती है। फकीर ने कहा, इसने जानवर तो बहुत से कमजोर लोगों को बनाया है, इसको कहो कि मुझे जानवर बनाकर दिखाए तो फिर मैं इसका जादू मानूंगा। इससे पहले कि पंडित अपनी बेटी को मशवरा देता कि जाओ बेटी इस पर वार करो, अल्लाह वाले ने जादूगरनी पर एक फूंक मारी तो वो इसी वक्त एक बड़ी छिपकली बन गई। वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। वो छिपकली इतनी बड़ी थी कि वहाँ पे जितने भी इंसान थे इन सब से ऊंचा कद उसका था। अल्लाह वाले के पास वो आने लगी, आहिस्ता आहिस्ता अपना जहर उगलना ही चाहती थी। वो जानते थे कि वो क्या करने वाली है। इसी वक्त उन्होंने उसके मुंह पर थूक दिया तो वो जलने लगी। वो थूक क्या थी? तेजाब था, इससे इसका आधा चेहरा जल गया। करीब था कि इसका पूरा जिस्म जलकर खत्म हो जाए। पंडित भागता हुआ आया और इनके कदमों में गिर गया और माफी मांगने लगा और कहने लगा, गुस्ताखी के लिए मुझे माफ कर दीजिए, मैंने सच में आपको बहुत कमजोर समझा और आपको आपके मजहब से हटाना चाहा। अगर मेरी बेटी ठीक हो जाएगी तो मैं सच कहता हूँ कि यहाँ जितने लोग मौजूद हैं ये पूरी बस्ती मुसलमान हो जाएगी। फकीर ने कहा, हम किसी को जबरदस्ती अपने दीन में शामिल होने के लिए मजबूर नहीं करते, बल्कि तुम लोग हमारे मुसलमान भाइयों पर जो जुल्म करते हो हम इसको खत्म करना चाहते हैं। हमारे दीन में जबरदस्ती नहीं है। अगर तुम्हारी बेटी इंसान बनकर सुधर जाती है तो इसको इसकी असल हालत में लाने के लिए मैं खुद अल्लाह ताला से दुआ करूँगा। कहने लगा, हाँ मेरी बेटी अपनी असल हालत में आएगी तो वो किसी पर भी कोई जुल्म नहीं करेगी, बल्कि इसके लिए दिल से माफी चाहता हूँ। जो कुछ मेरी बेटी ने आपके साथ किया है आइंदा ये कोई काला जादू और कोई भी ऐसा गंदा अमल नहीं करेगी और किसी भी मुसलमान पर कोई सख्ती नहीं करेगी। बस आप इसको दोबारा से इंसान बना दें। अल्लाह वाले ने छिपकली पर फूंक मारी तो वो फिर से इंसान बन गई और फकीर के कदमों से लिपट गई और कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत कमजोर समझा। आप जब
जब तक यहाँ रहे मेरे लिए एक फकीर थे। अपने लिबास और हुलिये से मुझे एक दीवाना फकीर लग रहे थे। मेरे बाप की टांग का जहर आपने हटाया, इसके बावजूद मैं आपकी जान की दुश्मन बन गई और मैं चाहती थी कि मैं आपसे बदला लूं, मगर मुझे तो खुद अजाब मिल गया। वो कहने लगी कि आज मैं अपने बाप के साथ आपके दस्ते मुबारक पर मुसलमान होना चाहती हूँ और ये वादा करती हूँ कि आइंदा इस बस्ती में कोई भी काफिर किसी भी मुसलमान को नहीं सताएगा, बल्कि सब आपस में मिलजुल कर भाई भाई बनकर रहेंगे और सब के सब मुसलमान हो जाएंगे। तो यूं एक अल्लाह वाले के हाथों पर एक पंडित और इसकी बेटी ने इस्लाम कबूल किया और फिर पंडित ने अल्लाह वाले से अपनी बेटी की शादी कर दी और इस बस्ती में अमन व अमान कायम हो गया। कल तक जो लोग गरूर करते थे, आज वो अल्लाह वाले की करामत से अच्छाई का पैकर बन गए थे। सुभान अल्लाह।